the Lord, brothers and sisters. I welcome you once again to this prayer meeting. Let us begin by signing ourselves in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु ए संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमेन नमान मरिये कृपेन बुडलेले सो मी तुझे सांगता स्त्रियांभितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू संतांबरे देवाचे माय आम्हा पप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. As Job 1 verse 21 says, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord has given, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Yes, my dear brothers and sisters, as we see how Job, who had lost his everything, his family, wealth, position, yet he was bold enough to praise God. And so, my dear brothers and sisters, I encourage you to thank God today and praise His name, even if we are in any situation. और इसीलिए भाई और बहनों मैं आपको प्रोत्साहन देती हूँ कि अब हम प्रभु को धन्यवाद दें. Blessed be the name of the Lord.
Corinthians 3 verse 17 says, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Even as we have praised and thanked God, let's ask the Holy Spirit to take control so that we can worship God in freedom. तो जैसे हमने अभी प्रभु की आराधना की, हम पवित्र आत्मा को बुलाए ताकि हम पवित्र आत्मा की मदद से प्रभु की आराधना कर पाए. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in us the fire of your love. As Exodus 23 verse 25 says, "Worship the Lord your God, and his blessings will be on your food and water. I will take away sickness from amongst you."
और तुम आपके परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। Father, you're worthy to be praised and worshipped, and no one can give you that worthy worship except through your Son, Jesus Christ. When we worship God, we develop a relationship with Him, whereby which God is in charge, and we have to just depend and trust in Him. जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, तब हम उनके साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं और वो हमारे कार्य प्रभारित बनते हैं। इसीलिए तब हमें प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर रहना होगा। So I request you, friends, to come and worship Lord, bless Him and trust Him. Not look into the situation, but look at Jesus, who can turn our worry into worship and our battles into blessings. इसीलिए मैं आपको सबको प्रोत्साहन देती हूँ कि आप प्रभु की आराधना करो, उन पर विश्वास रखें और उन पर सारे परेशानियों में उन पर निर्भर रहे, क्योंकि प्रभु ही है जो हमारे तकलीफ, हमारी कठिनाइयों को आशीर्वाद में बदल सकता है। तुझे
हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तुझे मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। Good evening, dear brothers and sisters, and praise the Lord. Let us give glory and honor to our Lord for blessing Sister Suzanne and their team, which has led us into this wonderful time of praise and worship, which has helped us to experience God's presence. Thank you, Sister Suzanne. May God bless you and your family. Let us welcome today in our midst Sister Angela Borges, our very own prayer group member, who conducts RCI classes and teaches catechism to our non-Catholic brothers and sisters and keep them ready for the sacrament of baptism. She has been instrument in bringing many souls to our Lord. Today she is going to break the word of God with us in the areas of praising God at all times. So warm welcome to you, Sister Angela, in the name of Jesus. Sister Angela. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Silorin. Praise the Yes, Lord. yes. और इस समय हमारी आंखों को बंद करेंगे और 2 पल के लिए हम प्रभु को इस समय हमारे बीच में बुलाएंगे। प्रभु इस समय प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति प्रभु हर एक वचन सुनने वाले के ऊपर प्रभु आने दे। प्रभु आज के वचन सुनकर प्रभु हर एक हृदय प्रभु हर एक मन प्रभु हर एक आत्मा प्रभु तेरी स्तुति करे, प्रभु तेरा महिमा करे, प्रभु तेरी गौरव करे। प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रभु दीजिए। प्रभु इस वचन पर आपका अभिषेक आने दीजिए। प्रभु मेरी जुबान को स्पर्श कर दीजिए। प्रभु इस समय प्रभु माँ मरियम को भी याद करते हैं। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब अनंत काल तक रहेगी आमीन। प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर डियर्स एंड सिस्टर एंड गुड इवनिंग। और आज का विषय जो है प्रेजिंग गॉड एट ऑल टाइम, हर समय प्रभु की स्तुति करे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 1। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। Psalm 34 verse 1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth.
और इस वचन को हमने देखा, वचन को हमने सुना कि प्रभु ने हमें किस तरह परमेश्वर की हम हर समय स्तुति कर सकते हैं। यदि आप लोगों को बताया जाए तो आप बोलोगे हर समय तो हम काम पे रहते हैं, हर समय तो हमें बहुत सारा काम रहता है, लेकिन हर समय हम पूरा दिन और रात हम कैसे स्तुति कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वचन को यदि हम सुनेंगे तो जैसे हमें पता चलता है कि हर समय हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सुख के क्षण में प्रभु की स्तुति करो, कठिनाइयों में उसकी खोज करो और दुख दर्द में उस पर भरोसा रखो, शांत के समय में उसकी आराधना करो और हर पल में ईश्वर को धन्यवाद दो। और इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि सुख के क्षणों में हमें प्रभु की स्तुति करना है, कठिनाइयों में हमें उसकी खोज करना है और दुख दर्द में उस पर हमें भरोसा रखना है और शांति के समय में हमें उसकी आराधना करनी है और हर पल में हमें उससे धन्यवाद देना है। क्योंकि पवित्र वचन इस तरह कहता है, 1 थेसलोनियन अध्याय 5 वचन संख्या 18, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, क्योंकि ईसा मसीहा के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कहता है हर समय हमें प्रसन्न रहना है, हर बातों के लिए हमें धन्यवाद देना है, निरंतर प्रार्थना करनी है और ये परमेश्वर की इच्छा है, पिता परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा ईसा मसीह के अनुसार, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा है। जब हम इस तरह परमेश्वर की स्तुति का जीवन बिताते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या फायदे होते हैं मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। क्योंकि सबसे पहले हम दिन और रात प्रभु पर मन लगाते हैं, स्तुति करते हैं और स्तुति का जीवन बिताते हैं, तो सबसे पहले हम ईश्वर के प्रेम का हम अनुभव करते हैं, हमें ईश्वर की ज्योति प्राप्त होती है, इसकी रोशनी हमें प्राप्त होती है। उसी तरह हमारा सोच, हमारे नकारात्मक विचार जो है वो नियंत्रण में आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि विचारों का, हमारा जो दिमाग जो है एक विचारों का घर है और इसे कहा भी जाता है, खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर भी कहा जाता है। तो हमारे नकारात्मक जो विचार होते हैं, पूरे दिन भर हमारे मन में विचार बहुत सारे रहते हैं। ये साइंटिस्ट लोगों ने मतलब रिसर्च करके बात बताया है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि कम से कम दिन में हमारे मन में 5,000 ऐसे सोच विचार आते हैं, लेकिन उनमें से 10 या 8 या 10 हमारे खुद के अच्छे विचार होते हैं। तो वो रिसर्च जो साइंटिस्ट लोग बताते हैं तो उससे ये हो सकता है। उसी तरह जब हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं हर समय, हमारा मन शुद्ध रहता है। तीसरी जो बात है, पांचवी जो बात है, हम एक विजयी सक्सेसफुल जीवन, एक विश्वासी क्रिस्तीय जीवन बिता सकते हैं। उतना ही नहीं, हमारे जीवन में हम हर समय सफलता को प्राप्त करते हैं। दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, ऐसे मत सोचो कि हर समय प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद देने से हमें दुख नहीं आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन हर दुख पर हम सफल और विजयी और एक क्रिस्तीय विश्वासी जीवन हम बिता सकते हैं। उतना ही नहीं, जब हम परमेश्वर की प्रति समय स्तुति करते हैं, हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। क्योंकि मैं मेरी खुद की गवाही दे रही हूँ, जब मैं प्रेयर में आने से पहले मेरे अंदर बहुत बीमारियां थी, बहुत कुछ दुख तकलीफ थे, बहुत समस्या थी, लेकिन आज मैं 57 की हूँ, मैं कभी भी कोई भी मेडिसिन मुझे नहीं है, ये मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आज गवाही देने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। एक हमें प्रभु एक अच्छा स्वास्थ्य देता है, क्योंकि हमारा मन चंगा होता है, हमारा हृदय चंगा होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है जब हम परमेश्वर के निरंतर स्तुति करते हैं। तो और एक जो बात है, हमें एक अंतर्दृष्टि, हमारी सोच विचार और हमें देखने की दृष्टि जो है वो बदल जाती है। और एक बात जो है, हम जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रेजिंग गॉड ऑल द टाइम, हमारी जुबान जो है वो शुद्ध होती है, पवित्र जुबान होती है
और वो जुबान को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पैरिश के कितने छोटे छोटे बच्चे जो हैं प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि इतने छोटे बच्चे इतने कम उम्र में प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। यदि हम बहुत सारे निगेटिव बातों को देखने के लिए जाएंगे, अभी बहुत सारा कोरोना हो रहा है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, उन पर यदि दृष्टि लगाएंगे तो हम प्रभु की स्तुति नहीं कर पाएंगे, हम धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसे हमें ध्यान करना है। तो हम देखते हैं जूइश लोग जो होते हैं वो दिन में 3 बार क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हिंदू जो होते हैं वो 2 बार प्रार्थना करते हैं। मुस्लिम जो होते हैं वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। परंतु ख्रिस्ती जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनको 5 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं है, ऑल द टाइम निरंतर करना है। तब हमें ईश्वर की ज्योति प्राप्त होती है। हम देखते हैं रोमन चैप्टर 1:21 से ऑनवर्ड आगे तक हम देखेंगे तो सेंट पॉल हमें कहते हैं कि जिन लोगों ने ईश्वर की आराधना नहीं की, ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, ईश्वर की स्तुति नहीं की, ईश्वर के सामने वो आए नहीं है, ईश्वर को उन्हें नकारा, तो वो लोग किस तरह अंधकार में चले गए, किस तरह पाप में चले गए और किस तरह उनकी दुर्दशा हुई। तो हमें इस तरह जीवन बिताने के लिए नहीं बुलाया, हमें परमेश्वर ने उसके सम्मुख उसकी स्तुति निरंतर करने के लिए बुलाया है। तो आज हम देखेंगे किस तरह हम परमेश्वर की स्तुति निरंतर कर सकते हैं, क्योंकि स्तुति की प्रार्थना जो है सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। स्तुति की प्रार्थना है सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना कहा जाता है। उसमें हम बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हमारे खुद के जीवन से भी हम औरों को इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारी जुबान जो है, हम देखते हैं सेंट एंथोनी की जुबान देखते हैं, वो अभी मरने के बाद कितने साल हो गए, लेकिन आज भी जब उसको दफनाया गया तो उसकी जुबान जैसी की वैसे मिली, आज भी वो जुबान जीवित है। तो हम भी इस तरह के कार्यों को कर सकते हैं। हम करने के लिए, इम्पॉसिबल हमारे लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे लिए संभव है। तो हम देखते हैं हमारी जुबान जो है परमेश्वर उसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि जब हम निरंतर प्रभु की स्तुति करते हैं, निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, निरंतर प्रभु की हम महिमा करते हैं, हमारी जुबान क्या होती है, शुद्ध होती है, और वो जुबान परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो हम देखते हैं एक्सोडस में हम देखते हैं परमेश्वर मूसा के साथ था, मोजेस के साथ था, और वो 6 लाख लोगों को लेकर परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। परमेश्वर उनकी पुकार सुनता था, उनको बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए गए थे, उनको बहुत सारे प्रॉमिस लैंड में लेके जाने के लिए आशीर्वाद दिए गए थे और उनको प्रतिज्ञाएं दिए थे, और परमेश्वर दिन और रात उनके साथ चलता था। फिर भी हम देखते हैं 40 साल उनको लग गए, उनको 40 साल लग गए। 11 दिन का रास्ता था लेकिन 40 साल लग गए। परमेश्वर उनको 1 दिन में भी लेके जा सकता था या उनको 2 दिन में भी लेके जा सकता, वो महान परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कुड़कुड़ाया, दोष लगाया, लड़ाई की, झगड़े किए, और इसके कारण वहां पर कोई नहीं पहुंच पाया। बहुत सारे लोग जंगलों में मरकर नाश हो गए, बहुत सारे लोग तलवार के घाट उतार दिए गए, और बहुत सारे लोग सांप ने काटने से मर गए। और वहां पर प्रॉमिस लैंड में सिर्फ 3 व्यक्ति पहुंच गए, कालेब, नून और जोशुआ, यहोशू, 3 व्यक्ति पहुंच गए। तो आज हम देखते हैं, हम यदि इन नून, कालेब और जोशुआ की तरह हम यदि जीवन बिताने की आज प्रयास करेंगे तो हम भी बहुत अच्छे अच्छे कारनामे कर सकते हैं, घर में बैठकर भी कर सकते हैं। ऐसी कुछ बात नहीं है कि हम बहुत कुछ ये करना है। तो जब हम परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते हैं तो स्तोत्र ग्रंथ 103 वचन संख्या 4, वह तुझे सर्वनाश से बचाता और दया और अनुकंपा से संभालता है। Psalm 103 verse 4, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसको निरंतर हम उसको धन्यवाद करते हैं, तो वो हमें क्या करता है, हर बुराई से बचाता है, हर बुराइयों से बचाता है, और अपनी अनुकंपा से वो हमें संभालता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं एक्ट चैप्टर 12:1 में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं जब पीटर को
जब जेल के अंदर डाल दिया गया था, उसको सांकलियों के बीच में उसको बांध कर रखा था। जेलर ने उसको उसके सांकलियों के बीच में बांधा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं ऐसे कठिन समय में वो क्या करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था। और परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्गदूत को भेजा। आज हमारे ये जो दिन आए हैं वो स्तुति करने के दिन आए, प्रभु को धन्यवाद देने के दिन आए हैं। हम यदि देखा जाए तो बहुत कठिन दिन है, लेकिन उससे भी प्रभु महान कार्य भी कर रहा है। प्रभु को हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को आज प्रभु खड़ा कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आज हम देखा कि आज हमारे पैरिश के बच्चे कितनी अच्छे से स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु पवित्र आत्मा की बारिश बरसा रहा है, वो हम ध्यान नहीं देते। बहुत सारे घरों में प्रभु की आराधना हो रही है, लाखों करोड़ों करोड़ों मतलब प्रभु का वचन प्रचार घर घर तक पहुंचा जा रहा है। दुख तकलीफ बाहर है, लेकिन अपने लोगों के लिए प्रभु ने तो ढेर सारे आशीर्वाद और पवित्र आत्मा का बारिश बरसाया जा रहा है। तो हम देखते हैं योएल की ग्रंथ, योएल चैप्टर 3 और वचन संख्या 1 में देखना है, हम जैसे हम सब शरीरधारियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े जो है सपना देखेंगे, तुम्हारे नव युवक हैं यो दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं अपनी दास दासियों पर अपनी आत्मा उतारूंगा। तो हम देखते हैं परमेश्वर इन दिनों में बहुत सारे लोगों पर, बच्चों से बुजुर्ग लोगों से, युवाओं से पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहा है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु हमें तैयार कर रहा है। प्रभु हमें उन दिनों में जब युद्ध होते थे, लड़ाई होते थे, लोग मारे जाते थे, लेकिन इतना वचन का प्रचार, इतनी उपस्थिति, इतनी आराधना, इतनी स्तुति नहीं थी। लेकिन हम लकी लोग हैं, इतने संकट के दिन है, कठिनाई के दिन में है, फिर भी हम पवित्र आत्मा के ज्ञान को, प्यार को अनुभव करते हैं। तो इस अनुभव को प्रभु ने हमें दिया है, इस सामर्थ्य दिया है, तो उस सब बातों को लेकर हमें निरंतर प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रेरित चरित्र 16 एक्ट चैप्टर 16 में हम देखते हैं पौलुस और सिलास, पॉल और शॉल को जब जेल में डाल दिया गया, तो उनको वो क्या कर रहे थे, उस समय वो लोग भी प्रभु की स्तुति कर रहे थे। वो लोग प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहे थे, उसका गुणगान कर रहे थे। और हम देखते हैं स्तुति का जीवन, उनका स्तुति का जीवन देखकर उनका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, जो जेलर लोग थे उनके ऊपर पड़ा। उनका जीवन देखकर वो जेल के अंदर स्तुति कर रहे थे। और वो जेलर कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय पौलुस उनको बताता है, पीटर उनको बताता है, प्रभु यीशु में विश्वास करो और बपतिस्मा ग्रहण करो तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। जब हम निरंतर प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। अभी आप लोगों को मैं आगे में बता रही हूँ कि किस तरह हम प्रभु की निरंतर स्तुति कर सकते हैं, किस तरह हम। अभी आप बोलोगे, क्योंकि हमारी प्रार्थना जो होती है 4 प्रकार की प्रार्थना होती है। सुबह उठते हम पर्सनल प्रेयर करते हैं, उसके बाद में हम शाम के समय में पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, या हम मिसा में जाते हैं, या होली मास सुनते हैं, कम्युनिटी प्रेयर है। उसी तरह हम प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, वो भी एक कम्युनिटी प्रेयर में हम जाते हैं। मिसा बलिदान सबसे बड़ा महान प्रार्थना है, महान धन्यवाद की प्रार्थना है। और इनके अलावा ये सब वचन पढ़ते हैं बाइबल में। इसके अलावा हम और समय जो बचता है, हम काम पर जाते हैं, घर पर आते हैं, तो वो समय हमें किस तरह परमेश्वर को देना है, तो इसे मैं आगे में बता रही हूँ। तो जब हम प्रभु के लिए स्तुति का जीवन बिताते हैं, तो हमारा जीवन औरों को प्रभु के पास लेकर आता है। जैसे हम देखते हैं पॉल और सॉल को, उनका जीवन क्या हो गया, उनकी जीवन, उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना सुनकर वो जेल के जो जेलर थे उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, उनके फैमिली ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तो इस तरह हमारी जुबान प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं गवाही दे रही हूँ यहाँ पर। मेरे एक दिन मैं शिवाजी हॉस्पिटल से एक फोन आया मुझे, और वहां से उन्होंने मुझे इस तरह कहा कि एक बहन है, वो लास्ट मोमेंट में उसने अपने आप पर पेट्रोल घासलेट डाल दिया है और जला दिया है, वो अभी मरने वाली है, तो उसको ले प्रेयर करो। तो मैंने उनको पूछा वो बहन कैथलिक है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं वो बहन कैथलिक नहीं है, उसको यीशु के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उसका लास्ट मोमेंट है, उसके लिए प्रेयर करो। तो मैंने वो बहन को तो मैंने देखा नहीं कभी, और मैंने उसके लिए प्रेयर किया। और मेरे को अभी पता नहीं अभी उसके लिए क्या प्रेयर करूं, क्या बोलूं। मैंने यीशु को बोला, यीशु तू उसे एक नया जीवन दे, उसे उद्धार का जीवन दे, उसे तू बचा ले। और उतना प्रेयर किया, और मैं बाद में भूल गई, मैंने उसको मेरा पर्सनल प्रेयर में रखा। वो बहन मरने के बजाय वो जीवित रह गई।
और जैसे वो जीवित रह गई तो उसने कहा नहीं नहीं, जिस व्यक्ति ने मुझे प्रेयर किया हॉस्पिटल में, वो व्यक्ति को मुझे देखना है। और ये बहन को लेकर वो उनका जिसने मुझे फोन किया था, उसने मुझे कहा वो बहन तुम्हारा घर आना चाहती है। उससे पहले ही एक लड़की हमारे घर में आई थी और वो लड़की ने एमबीए किया था, उसको जॉब नहीं मिला रहा था। वो बोल रही थी मुझे आंटी सुसाइड करना है, मुझे मरना है। अभी मैंने उसके घर पे फोन किया, उसका माँ काम पर चली गई। अभी ये सुसाइड करना है, सुसाइड करना है, मरना है, अभी ये मर जाएगी, मैं घर पे भेजेगी। तो मैंने उसको मेरे घर पे बिठाया। मैं बोला जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती है ना, तब तक तुम यहीं रहो। उसको बहुत समझाया, वो सुनती नहीं। नहीं मुझे मरना है, इतना पढ़ाई करके बहुत अच्छा फर्स्ट, वो एमबीए में फर्स्ट आई थी। वो बोलती इतना पढ़ाई करके मुझे क्या फायदा। तो मैंने उससे कहा तुम बैठो, शांत बैठो। और उसी समय वो जो बहन जो मरने वाली थी, वो भी बहन आई। उसको पूरा गुरखा डाल के हमारे घर में वो बहन लेके आई। और मैं सोचा कोई मुस्लिम औरत हमारे घर में आई है। तो मैंने वो जो बहन लेके आई थी उसको देखा। मैंने मैंने बोला ये कौन है हो तुम लोग। तो उसने बोला ऐसा ऐसा जिसको आपने प्रेयर किया था वही औरत है, और वो आपको देखना चाहती है। और मैंने उसको देखा तो मेरा शरीर कांप उठा, मेरा शरीर कांप उठा। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, पूरा हड्डी बिड्डी। बाप रे, उसको तो देख नहीं सकते थे। उसको देख के कोई भी डर जाता था, ऐसा उसकी हालत हो गई थी। और उसका जुबान जो था, ये जो चेस्ट था जुबान के उधर आया था, ये गर्दन जला था, पूरा जला हुआ था। तो मैंने उसको बात किया, मैंने यीशु के बारे में उसे समझाया। उसको कुछ भी पढ़ाई नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसको क्या प्रेयर सिखाऊं। कभी कभी मैं लोगों को बताती हूँ, मैं चार्ट बना के रखती हूँ, आ फादर, हेल मेरी, प्रणाम मरिया, संता मरिया का उनको देती है। अभी इसको कुछ भी नहीं आता है तो क्या बोलूं। तो सिर्फ मैंने उसको बोला सिर्फ तुम हालेलुया बोलो। हालेलुया का अर्थ है प्रभु तू महान है, और इतना ही बोलो। और यीशु 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 बोलो, इतना ही मैंने उसको प्रेयर दिया। और जो हमारे घर में सुसाइड करने के लिए लड़की आई थी, उसको मैंने बाहर लाया। उसको बोला देख तुझे सुसाइड करना है ना, ये देख ये भी सुसाइड करके यहाँ पर आई है। ये लड़की ने जब उसको देखा वो भी डर गई, और वो बोली आंटी सॉरी, अभी मुझे कभी सुसाइड नहीं करना है, अभी मैं टाबोर में जाऊंगी, मैं इस फादर को मिलूंगी, रिट्रीट में बैठूंगी करके उसने बोला। तो शायद हो सकता है ये परमेश्वर का प्लान था, वो लड़की को भी बचाने का और वो औरत को भी बचाने का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका ये बड़ा महान मेरा कार्य नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने सिर्फ उनको कुछ भी, वो लेडी जो आई थी उसको कुछ भी प्रार्थना नहीं आती थी, वो यीशु को नहीं जानती थी, उसको कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं थी। यदि मैं उसको प्रणाम मारिया बोलूंगी, हेल मेरी बोलूंगी, कुछ भी समझ में नहीं आता था। और ऐसे फिर मैंने उसको एक ही दो ही लफ्ज सिखाया, हालेलुया बोलो, यीशु बोलो, दिन भर वही बोलते रहो। और ऐसा चमत्कार हुआ, वो औरत जो थी वो बच गई। उसके शरीर में अच्छी स्किन आना चालू हो गया। केम हॉस्पिटल में उसके 2-3 ऑपरेशन हो गए, ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उसको मैंने रेट्रिक में बिठाया। रेट्रिक में बैठाने के बाद उसके जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य चालू हो गए। और उसके बाद में उसने बैप्टिज्म लिया। तो इसका मकसद क्या है, हम ऐसा नहीं बड़ी बड़ी प्रार्थना करनी है निरंतर। वो औरत क्या करती थी, यीशु 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 ही करती थी दिन भर। और ये यीशु यीशु दे स्तुति से उसके जीवन को प्रभु ने बचाया। तो इस तरह हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति का जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमारी जुबान, हमारी सारे शरीर के अवयवों को इस्तेमाल करता है, हमारी आवाज को इस्तेमाल करता है, हमारी जुबान को इस्तेमाल करता है, हमारे हाथ पैरों को इस्तेमाल करता है। और हम जिंदा है, हमारा शरीर क्योंकि प्रभु की महिमा के लिए है। तो इस तरह हम देखते हैं फिलिपियन चैप्टर अध्याय 4 वचन संख्या 4। तब ईश्वर की शांति, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से बाहर है, हमारे हृदय को, विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखती है। परमेश्वर की शांति क्या, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखती है। Philippians 4:7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Meditate on these things. तो इस समय जब हम परमेश्वर की स्तुति लगातार हमारी जुबान में चलती है, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारे मन में नकारात्मक विचारों को जगह नहीं मिलती है।
खाली समय रखोगे तो कोई ना कोई हमारे मन के अंदर दुष्टता के भरे विचार आते ही रहेंगे। यदि हमें किसी ने दुख पहुंचाया है, हमें धन्यवाद देना है, स्तुति करनी है। कोई हमारे साथ लड़ाई कर रहा है, स्तुति करना है। कोई हमें कुछ बोला है, स्तुति करो, धन्यवाद दे दो, क्योंकि इससे ही हम शैतान के सारे तीरों को बुझा सकते हैं और इससे ही हम परमेश्वर को, मैंने मेरे खुद देखा है, मैंने बहुत ऐसे लोग जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो स्तुति से आज बहुत विजयी हो गए हैं। मेंटल लोगों को मैंने सिर्फ उतना ही प्रेयर सिखाया है। एक बहन थी जो मेंटल थी, पूरी डिप्रेशन में गई थी, उसको कुछ भी नहीं आता था, उसको प्रणाम मार, कैथलिक ही थी वो, प्रणाम मारिया भी नहीं आता, हेल मेरी वो बोलती भूल गई, मेरे को नहीं आता है। वो साड़ी पहनती है तो ब्लाउज पहनना नहीं होता था, ब्लाउज पहनती तो साड़ी पहनना नहीं होता था। तो मैंने उसको खाली सिर्फ बोला तुम हालेलुया 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 बोलते रहो, और आज वो बहन एक मध्यस्थ प्रार्थना योद्धा है। तो डिप्रेशन से बाहर, डिप्रेशन में गए, मेंटल हो गए, ऐसे लोग परमेश्वर के निरंतर स्तुति करने से चंगे हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर ने हमें इस समय आशीर्वाद देता है जब परमेश्वर की हम लगातार स्तुति करते हैं। लेकिन परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग दो प्रकार के होते हैं। एक मैं आप लोगों को उदाहरण दे रही हूँ। एक मुंगूस था, और ये मुंगूस है वो एक होल के अंदर गया, और ये कुत्ता जो था, एक कुत्ते ने उस मुंगूस को देखा, और ये कुत्ते को उस मुंगूस को पकड़ के खाना था। और ये कुत्ता ने मुंगूस को देखा, अभी वो मुंगूस होल के अंदर गया, वो कैसे बाहर निकलेगा। ये कुत्ता ने जोर जोर से भौंकना चालू किया। वो भौंकने की आवाज सुनकर और 2-3 कुत्ते आए, उन्होंने भी भौंकना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर और बाजू गांव के सभी कुत्ते आए, उन्होंने भी भौंकना शुरू कर दिया। अभी किसी को भी मालूम नहीं है कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। बहुत सारे कुत्ते जमा होकर एक बिल के पास, एक होल के पास भौंक रहे हैं। उसको देखकर पब्लिक जमा हो गई। पब्लिक को भी मालूम नहीं है कुत्ता क्यों भौंक रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग एक एक करके निकल गए। सभी लोग, कुत्ते निकल गए, पब्लिक भी निकल गए। जिन्होंने, एक कुत्ते ने जिस मुंगूस को देखा था जो होल के अंदर गया था, वही कुत्ते ने लास्ट तक रहकर उस मुंगूस को पकड़ा। तो उसी तरह हमारे जीवन में होता है। लोग स्तुति करते हैं, हम स्तुति करते हैं। लोग गाना गाते हैं, हम गाना गाते हैं। लोग महिमा करते हैं, हम महिमा करते हैं। लेकिन जिस तरह वो कुत्ते ने उस मुंगूस को देखा, उसी तरह जिस व्यक्ति ने ईश्वर का स्वाद चख लिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अनुभव किया है, यदि नहीं भी किया है तो आज आप प्रार्थना करो, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कठिन दिनों में मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो, मुझे सुबह शाम दिन और रात प्रभु तेरे आत्मा से भर दो। और जब हम इस तरह की पवित्र आत्मा से भरते हैं, तब हम परमेश्वर की स्तुति निरंतर कर सकते हैं। कठिनाइयों में कर सकते हैं, दुखों में भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम में भी कर सकते हैं। नहीं तो हमारे मन के अंदर जो है शैतान घुसकर हमारा मन क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। हमें बहुत सारे ख्याल हमारे मन के अंदर डाल देता है। तो हम देखते हैं यहोशू का ग्रंथ अध्याय 6, होशिया चैप्टर 4 वचन संख्या 6। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हो रही है। Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for the lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I also will reject you from being priest for me, because you have forgotten the law of your God. I also will forget your children. तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, मेरी प्रजा खाने के बिना नाश हो रही है, मेरी प्रजा दुख तकलीफ के बिना नाश हो रही है, मेरे जो लोग जो हैं वो कठिनाइयों में नाश हो रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कहता है मेरे लोग ज्ञान के बिना नाश हो रहे हैं। जब हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं तभी हमें ये अनुभव मिलते हैं। नहीं तो हम देखते हैं वो जिस तरह हम परमेश्वर का अनुभव करते हैं, परमेश्वर के एक्सपीरियंस को करते हैं, प्रभु को हम उपस्थिति को महसूस करते हैं, तब हम लगातार प्रभु की उपस्थिति को हम लिए चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति को लिए चलते। चाहे घर में स्कूल ऑफ इंटरसरी का जो टॉक देता था, तो फादर ने भी कहा तुम बहुत दिनों तक प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना का कोई उत्तर तुम्हें नहीं मिलता है तो धन्यवाद दे दो,
यदि हम सालों से बरसों से हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते, उदाहरण मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु उन्हें सुधार दे, प्रभु उन्हें बदल दे, तो उदाहरण मेरे पति के लिए प्रार्थना करे, मेरे सास के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, या उधर फैमिली के लिए, बरसों से एक ही रट लगाओगे, प्रभु उन्हें चंगा कर, प्रभु उन्हें बुद्धि दे, प्रभु उन्हें ज्ञान दे, प्रभु उन्हें ऐसा कर, प्रभु उन्हें ऐसा कर, अमका कर, धमका कर, वही प्रार्थना करेंगे। उससे अच्छा वो फादर ने बताया कि तुम ऐसी प्रार्थना करो, धन्यवाद दे, प्रभु मेरा पति सुधर गया, धन्यवाद, प्रभु तूने उसे नया हृदय दिया, धन्यवाद, प्रभु वो प्रार्थना के लिए आ रहा है, धन्यवाद, प्रभु मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे, धन्यवाद, प्रभु मेरे बच्चों को तूने अच्छा जॉब दिया, धन्यवाद, प्रभु तू मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य दिया, धन्यवाद। इस तरह हमें नकारात्मक बातों को निकालकर सकारात्मक पॉजिटिव सोचकर हमें धन्यवाद देना है लगातार लगातार, तो हम क्या हो जाते हैं, सक्सेस होते हैं, हमारे मन के अंदर शांति आती है। कभी कभी घर के अंदर ऐसी परिस्थिति को देखकर हम क्या करते हैं, लगातार चिड़चिड़े होते हैं लगातार, लेकिन हमें अपोजिट बोलना है, प्रभु तूने उस व्यक्ति को छू लिया, धन्यवाद, प्रभु तूने मेरी माँ को स्पर्श किया, धन्यवाद, प्रभु तूने मेरे बेटे को छू लिया, धन्यवाद, प्रभु मेरे बेटे ने सारी बुरी आदत छोड़ दी, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसे निरंतर जब बोलते हैं शैतान भी हार जाता है। शैतान भी निरंतर स्तुति करने से, आप लोगों ने इस गवाही को सुना होगा, एक जो राजा था और एक सेनापति था, और ये सेनापति की एक आदत थी, सब बातों में वो प्रेज द लॉर्ड बोलता था, कुछ भी हो जाए प्रेज द लॉर्ड, कोई मर जाए भी प्रेज द लॉर्ड, दुख आए प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक दिन राजा की उंगली कट गई तो वो प्रेज द लॉर्ड बोला, राजा को बहुत गुस्सा आया, ये प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है, मेरी उंगली कट गई और ये प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है। राजा ने उसे क्या किया, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। वो सेनापति जेल में था। राजा एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया, और शिकार करने के लिए गया तो वहां पर आदिवासी लोगों ने राजा को पकड़ा, राजा के सारे जो सैनिक थे भाग गए, राजा को अकेला ही छोड़ दिया, राजा को अकेला छोड़ दिया। और वो आदिवासी लोगों का एक रिवाज था, उनके देवी देवताओं को बलि चढ़ाना। तो उन्होंने सोचा आज हम राजा का सब लूटेंगे और उसको हम बलि चढ़ाएंगे। लेकिन उनके अंदर एक रिवाज था कि यदि उनके शरीर में कोई जख्म है तो उनकी देवी वो बलिदान स्वीकार नहीं करती थी। तो उन्होंने देखा राजा के हाथ के उंगली पर घाव है, तो उन्होंने राजा को छोड़ दिया। तब राजा को पता चला कि मैंने सेनापति को क्यों जेल में डाल दिया, मेरी उंगली कट गई, इसके लिए मैं आज उन आदिवासी वो जंगली डाकुओं से मैं बच गया। जैसे वो पहले आया और वो जेल के अंदर गया और उसने सेनापति को बाहर निकाला, सेनापति को बाहर निकाला, वो सेनापति और जोर से खुश हो गया, बोला प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो राजा ने पूछा आप क्यों प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं यदि मैं वहां आपके साथ होता तो वो लोग मेरा बलि में आपका भी बलि चढ़ाते और मेरा भी बलि चढ़ाते, आप भी बच गए, मैं भी बच गया। तो जब हम परमेश्वर की लगातार स्तुति करते हैं तो परमेश्वर बुराइयों को भलाई में बदल देता है। यदि हमारे बच्चे गलत जा रहे हैं, परिवार के लोग गलत जा रहे हैं, कुछ भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, हमें प्रभु की स्तुति करनी है, धन्यवाद बोलना है, कुछ भी शिकायत करके प्रार्थना नहीं करनी है, दोष देकर प्रार्थना नहीं करनी है, ये बदल वो बदल, वो प्रभु अपने समय में ही बदलेगा। तो हम देखते हैं बाइबल में, देखते हैं जोशुआ 6 में हम देखते हैं एरिको के दरवाजे के फाटक बंद कर दिए गए थे, इजराइल लोगों को आना जाना बंद कर दिया था एरिको के राजा ने। लेकिन परमेश्वर जोशुआ के साथ था। क्यों था? जोशुआ के अध्याय को बाइबल में हम पढ़ेंगे तो जोशुआ ने कितने अद्भुत कार्य किए। जब स्तुति करने वाले लोगों के पास परमेश्वर सदैव उपस्थित रहता है। और जोशुआ जो था वहां पर उसको परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुम्हें क्या करना है, 6 दिन तुम्हें चक्कर लगाना है, 7वें दिन स्तुति करना है। इतनी बड़ी जो एरिको की दीवार थी टूट गई और इजरायली लोग वहां से प्रवेश कर पाए। तो स्तुति से बहुत सारे बंधन टूट जाते हैं। हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे लोगों के, कभी कभी बाइबल में हम देखते हैं जूडिथ को देखते हैं, उसको पहले ही उसने स्तुति किया है। कभी कभी हम देखते हैं हम बाद में स्तुति करेंगे, जब प्रभु मुझे कुछ देगा तब स्तुति करेंगे, अच्छा होगा तब स्तुति करेंगे, जब हमारे जीवन में कब कुछ भलाई होगी तब स्तुति करेंगे। मैं पहला टेलरिंग काम करती थी, तब वो लोग आते थे और साड़ी फॉल बीडिंग के लिए मुझे देते थे और मुझे कहते थे उसका थोड़ा टुकड़ा मुझे दे दो। मैं बोली क्यों? नहीं वो ईश्वर को देना है। मैं बोला साड़ी आप पहनोगे और चिंदी ईश्वर को दोगे?
तो इस तरह के बहुत सारे ख्याल होते हैं। तो इस तरह की गलत बातों के लिए हमें धन्यवाद भी नहीं करना है। कभी कभी बच्चे लोग कॉपी करते हैं और बोलते हैं थैंक गॉड, क्या हो गया, नहीं नहीं मुझे पकड़ा नहीं इसके लिए मैं थैंक गॉड बोलता हूँ। तो इस तरह की गलत भी स्तुति नहीं करना है, गलत धन्यवाद भी नहीं देना है। तो आज हम देखते हैं हर एक दिन इसी तरह मैं हर ट्यूसडे का टॉक सुन रही थी। वो बहन जो टॉक दे रही थी मुझे याद नहीं है, उसने कहा था कि हर समय हम प्रभु को स्तुति करना है। तो ऐसे ही मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी और मैं सोच रही थी वो टॉक के ऊपर, वचन के ऊपर। तो प्रभु ने मुझे कहा कि हम हर समय प्रभु को स्तुति धन्यवाद दे सकते हैं। यदि हर बातों के लिए वचन है, हर चीज के लिए प्रभु की स्तुति है, हर जो भी हम काम करते लिए उसके लिए भी प्रभु की स्तुति है, जो भी हम देखते हैं उसके लिए भी प्रभु की स्तुति है, जो भी हम काम करते, जो भी हम बाहर जाते उसके लिए भी स्तुति है। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि क्या इस तरह की स्तुति है और क्या इस तरह का ये है। तो यदि हम देखते हैं, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, हम लोग किचन में काम करते हैं, तो किचन में काम करते हैं तो हम किचन में भी प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। आप बोलोगे कैसे कर सकते हो? हम नल को चालू करते हैं, नल का पानी जब बाहर निकलता है तो पानी जो निकलता है, तो पानी के ऊपर कितने सारे वचन है, पानी के ऊपर कितने सारे प्रभु ने वचन दिए। पानी के ऊपर हम देखते हैं यीशु ने बैप्टिज्म जर्दन नदी में लिया, प्रभु इसलिए तुझे धन्यवाद करती हूँ, प्रभु तूने मुझे बैप्टिज्म दिया इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वो पानी को जब हम बर्तन मांजते हैं उस समय भी हम प्रभु को क्या कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। जब हम बर्तन मांजते हैं तो हम याद कर सकते हैं, अरे प्रभु तूने कहा है जीवन का जल मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे जल में से पीता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। इस वचनों को हम मन में लाते हैं और मन में नहीं भी आते हैं तो पवित्र आत्मा को बोलना है, प्रभु पवित्र आत्मा इस समय मुझे याद दीजिए, पवित्र आत्मा इस समय मुझे स्मरण दीजिए। और इस समय हम उसको लेकर काम करते हुए हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय भी हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रभु ने खाने के ऊपर भी वचन दिया है, प्रभु मनुष्य के अंदर जो जाता है वो उसे क्या करता है, अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन मनुष्य के मुंह से निकलता है वो उसे अशुद्ध करता है। तो खाना खाते समय हम अश्लील को पिक्चरों को देखते खाना खाते हैं, या हम गंदगी को देखते हुए खाना खाते हैं, या हम खाना खाते समय वो टीवी लगाते हैं, उसमें बहुत सारी दुनिया के मैला गंदा आता है, उसमें वो जो उनको जो प्लेटफॉर्म दिया वो ईश्वर ने नहीं दिया है। हमें कोई अच्छा चीज देखे हुए खाना खाते हैं, वो हमें अच्छा, शरीर के लिए भी अच्छा है, लेकिन उस समय भी हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। उदाहरण जो है, हम झगड़ा होता है तो उस समय भी प्रभु का वचन है, उस समय भी प्रभु की स्तुति है। यदि हम प्रोवर्ब में जाएंगे, प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे तो वहां पर दिया है चिंगारी है, चिंगारी, चिंगारी के ऊपर तुम फूक मारो वो भड़क उठेगी, और चिंगारी के ऊपर थूक दो वो बुझ जाएगी। दोनों हमारे मुंह से निकलते हैं, दोनों हमारे मुंह से निकलते। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी हम प्रभु की स्तुति करना है। हमारा मुंह बंद हो जाता है, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। यदि मुंह बंद हो जाता है तो झगड़े के कोई सवाल ही नहीं उठते हैं। तो इस तरह हमारी लगातार स्तुति होते है। जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हैं, हम देखते हैं तो रास्ते में जाते हैं, हम सोते समय या कहीं भी जाते हैं, हम आकाश को देखते हैं, सूरज चांद सितारों को देखते हैं, तो उस समय हमें प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। प्रभु ये सूरज चांद सितारों के लिए, तारे के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अब्राहम को तूने कहा था प्रभु तुम्हारी संख्या जो है वो तारों के समान होगी। तो हम किसकी संतान है? हम अब्राहम की संतान है, हम अब्राहम के वंश हैं। हमें इस तरह स्तुति करनी है, प्रभु अब्राहम के वंश है हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। इन सभी बातों को देखकर जब हम स्तुति करते तो नकारात्मक विचार, द्वेष भरे विचार, गुस्से के विचार हमारे मन में आने के लिए जगह कहाँ पर है? तो होती है हमारी निरंतर स्तुति। उसी तरह हम देखते हैं, हम यदि हमारे गहने भी, हम सोने का कुछ चीज भी हम डालते हैं, उसको भी देखकर हम स्तुति कर सकते हैं। यदि हम मेकअप करने के लिए जाते हैं, कुछ करने के लिए जाते हैं, तो प्रभु ने उसके ऊपर भी वचन दिया है। प्रभु ने कहा है तुम्हारा उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजें से नहीं, परंतु मूल्यवान प्रभु यीशु मेमने के लहू से हुआ है। तो ये सारे वचन क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर से निकल आते हैं। यदि नहीं भी निकल आते तो प्रभु को कहो, प्रभु मुझे याद दे दो, अभी मेरा माइंड खाली है, कुछ ना कुछ मैं बोलूं। स्तुति करते रहो, हालेलुया बोलते रहो, प्रभु की महिमा करते रहो, और देखो हमारे उसका परिणाम हमारे जुबान पर होता है, हमारे शरीर पर होता है, हमारी आत्मा पर होता है।
और हमारे जीवन पर होता है, और उसके द्वारा प्रभु का अद्भुत कार्य हम उपस्थिति, कोई भी डर नहीं हमें लगेगी। कुछ भी संकट हो जाए, प्रभु कहेगा अरे ये तो बच्ची मेरी दिन रात स्तुति करती है, मैं उसे क्यों तकलीफ दे दूं, क्यों मैं उसके साथ बुरा होने दूं, क्यों मैं उसे न बचाऊं। और परमेश्वर हमारे साथ तैयार रहता है। तो जब हम चपाती बनाते हैं तो उस समय भी प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। चपाती बनाते समय भी वचन है, यदि हम देखेंगे गेहूं का दाना जब तक जमीन मिट्टी में नहीं गिरता है तब तक वो फल नहीं दे सकता है। प्रभु आज चपाती में बना रही हूँ, प्रभु मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मुझे भी एक गेहूं के दाने की तरह प्रभु फल उत्पन्न करने वाले बना। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये गेहूं का दाना जो है वो मिट्टी में गिरता है, उसको कुटा जाता है, उसका रोटी बनाया जाता है, सारे संसार भर में उसको खिलाने के लिए मिलता है। तो इसी तरह हमें भी प्रभु के बहुत सारे कामों के द्वारा हमें भी कुटाया जाता है, पिटाया जाता है, तकलीफ मिलती है, विपत्ति मिलती है, फिर हमारे अंदर से फल उत्पन्न होता है। तो इस तरह हम प्रभु की स्तुति निरंतर निरंतर हर चीज को देखकर कर सकते हैं। दरवाजा खोलते हैं तो भी हम स्तुति कर सकते हैं, दरवाजा बंद करते तो भी स्तुति करते। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे सामने एक दरवाजा खोल देता हूँ, उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। प्रभु ने और एक दरवाजे के ऊपर वचन दिया है, मैं तुम्हारे हृदय का दरवाजा खटखटाता हूँ। इसके लिए स्तुति करना है, धन्यवाद देना है। और इस तरह की स्तुति का जीवन औरों को प्रभावित करेगा, औरों को ईश्वर के पास लाएगा। मेरे पास एक औरत आई थी, वो वेश्या थी, और ये जो वेश्या थी उसको बहुत बीमारियों से पीड़ित थी, बहुत तकलीफ से पीड़ित थी, और उसको बहुत सारी बीमारी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता जिसको मैं कौन सी प्रार्थना सिखाऊं, और उसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था, पढ़ाई लिखाई उसको नहीं समझ, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, और उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। शरीर का पूरा उसके शरीर का ढांचा हुआ था, और शरीर में सभी प्रकार की बीमारियां उसकी थी। मैंने उससे कहा तुम प्रभु से माफी मांगो, प्रभु से कहो प्रभु मुझे तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर दो। ये भी वचन उसको नहीं आता है। तो फिर मैंने कहा यीशु मुझे माफ कर दो, यीशु मुझे माफ कर दो, ऐसा बोलो, हालेलुया बोलो, प्रभु यीशु 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 बोलो। 3 शब्द मैंने दिए, हालेलुया बोलो, यीशु मुझे माफ कर दो बोलो, और यीशु यीशु बोलो। ये 3 शब्दों से उसके लाइफ में, उसके जीवन में जीती जागती वो गवाही बन गई। उसके सारे बीमारी चली गई, उसके रोग चले गए। वो एक एक गवाही आकर मुझे बताते, दीदी आज मुझे ये हो गया, दीदी मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया, दीदी मैंने ये छोड़ दिया, दीदी मैंने वो छोड़ दिया। और उसकी गवाही अमेजिंग टेस्टिमनी, मतलब स्तुति की टेस्टिमनी। और वो देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद देती थी, मैं खुश होती थी। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं कुछ बड़ी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु का एक लफ्ज उसके जीवन में कार्य किया। जब भी कोई आपको मिलता है, ट्रेन में मिलता है, आपको रोड पे मिलता है, कुछ नहीं होता है, उनको सिर्फ बोलो हालेलुया बोलो, स्तुति का शब्द बताओ उनको। तो फिर इससे हमारे द्वारा लोग औरों को भी प्रभु का स्पर्श हो जाएगा। और ये औरत जो थी वो ढांचा हो गई थी, सारे रिपोर्ट नॉर्मल ठीक ठाक हो गई, प्रार्थना करना सीख गई, बैप्टिज्म उसने लिया, खुद लिया, बच्चों को दिया, शादी चर्च में की, पूरे परिवार ने वो औरत ने प्रभु को पास लेकर आई। तो इस तरह हम प्रभु के लिए स्तुति का जीवन बिताने के लिए आज हम परमेश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस समय हम सभी जन आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जो भी बच्चों ने प्रभु आपका वचन सुना है प्रभु, उन्हें प्रभु स्तुति का हृदय दीजिए, प्रभु तेरी महिमा का हृदय दीजिए। प्रभु हम कठिन दिनों में जीवन बिता रहे प्रभु, इस समय तू उन्हें हर एक को स्पर्श कर दीजिए प्रभु। इस समय प्रभु हर एक फैमिलीज को प्रभु, हर एक कम्युनिटी को प्रभु, हर एक सेंट एंथोनी लिली के परिशनर्स को प्रभु स्पर्श कर प्रभु, जो बीमार है प्रभु इस समय उन्हें स्पर्श कर प्रभु, जो डिप्रेशन में प्रभु, जिनके जॉब चले गए प्रभु, जिनके घर में प्रभु आर्थिक समस्या से जूझ रहे प्रभु, जो प्रभु मेडिसिन के ऊपर है, जो प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, जो सालों से बरसों से बिस्तर पर है प्रभु, इस समय दया कर प्रभु, इस समय करुणा कर दीजिए प्रभु, इस समय तेरा महान सामर्थ्य आत्मा उन पर भेज दीजिए प्रभु। संत पौलुस और प्रिसिलास के जीवन में कार्य किया, वही कार्य प्रभु आज हमारे हर एक के जीवन में कर प्रभु। हर एक हमारे पैरिश के बच्चों को, यूथ को प्रभु अभिषेक कर प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु, हर एक को छू ले प्रभु। आपने प्रॉमिस किया है प्रभु, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सभी पर उड़ेल दूंगा प्रभु। इस समय जो भी बीमार है प्रभु, यहाँ पर बीमार जो वचन सुन रहे प्रभु, उनके हृदय को, मन को, आत्मा को चंगा कर प्रभु। हर एक डिप्रेशन
इन्फेक्शन चले जाए प्रभु, हर एक पत्थर की बीमारी चली जाए प्रभु, हर एक शरीर की डायबिटीज, ब्लड प्रेशर प्रभु, हर एक खांसी, सर्दी प्रभु, जुकाम प्रभु, कोरोना प्रभु, जो भी प्रभु पीड़ित है, भय से पीड़ित है प्रभु, उन्हीं समय स्पर्श कर दीजिए प्रभु, इस समय उन्हें छू लीजिए प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु आपके पवित्र नाम से मां मरियम की मध्यस्थ के द्वारा, संतों की मध्यस्थ के द्वारा मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।